Dear student, I am going to start lesson 4. The name of the lesson is The Wheat is Cheaper Second. Student, जैसा हमने lesson 3 में एक स्टोरी जो कि रवि के द्वारा सुनाई गई थी, जिसमें उसने मर्चेंट और एक फार्मर की स्टोरी बताई थी। पहले उसने मर्चेंट की स्टोरी बताई थी, जिसमें मर्चेंट फार्मर को एक स्टोरी सुना रहा था और फार्मर उसकी स्टोरी पर डाउट नहीं करता है, तो उसको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी थी। अब इस पार्ट में हम फार्मर मर्चेंट को क्या स्टोरी सुना रहा है और क्या मर्चेंट फार्मर की स्टोरी पर यकीन करेगा कि नहीं करेगा और उसको कीमत चुकानी पड़ेगी कि नहीं, ये चीज़ हम जानेंगे। जो कि अशोक, डेविड और रवि इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एक स्टोरी बता रहे हैं, उसको हमको ध्यान से सुनना है। अशोक: So the merchant couldn't get any money out of the farmer after all. David: How could he? The farmer didn't cast any doubt on his story. He was really very clever. Ashok: If the merchant is clever, he won't cast any doubt on the farmer's story either. So that is how the story is going to end. Ravi: No, the farmer made the merchant pay him. David: Did the merchant cast doubt on the farmer's story? Ravi: No. David: Then how could he make the merchant pay him any money at all? Ravi: Don't ask me, listen to the farmer's story. अब यहाँ से फार्मर की स्टोरी स्टार्ट होगी, जो हमको ध्यान से सुनना है। अशोक ने कहा, क्या मर्चेंट को कोई पैसे नहीं मिले फार्मर से? फिर डेविड ने कहा, ये कैसे हो सकता है? डेविड ने बोला कि फार्मर ने मर्चेंट की स्टोरी पर ज़्यादा डाउट नहीं किया, क्या वह चालाक है? फिर अशोक ने कहा कि अगर मर्चेंट चालाक है तो उसको फार्मर की स्टोरी पर डाउट नहीं करना चाहिए, तो ये स्टोरी कैसे खत्म होगी? फिर रवि ने बोला, नहीं, फार्मर ने शायद उस मर्चेंट को भुगतान किया होगा। फिर डेविड ने बोला, क्या मर्चेंट ने फार्मर की स्टोरी पर डाउट किया था? फिर रवि ने बोला, नहीं। डेविड ने बोला, तो फिर मर्चेंट ने मनी कैसे पे किया? फिर रवि ने कहा, तुम मुझसे मत पूछो, फार्मर की ये स्टोरी सुनोगे तो तुम जान जाओगे। Thank you for this interesting story, said the farmer, but mine is simple. Shall I begin? The merchant said, Yes, please. The farmer began the story. My father was a farmer. He had a fine horse and a fine saddle to put on it. Every Sunday he used to go on his horse to the market in a neighboring village. People admired the horse and its saddle, and they used to say, What a fine horse, what a fine saddle. One Sunday, my father put the saddle on the horse and rode to the market. When he returned home, he found that the horse had a sore on its back. Was it very big? The merchant asked. Yes, the farmer replied, as big as the palm of your hand. Do you know how it got the sore? फार्मर बोला, जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके लिए थैंक यू, और जो मेरी स्टोरी है वह बहुत ही सिंपल है, क्या मैं इसको स्टार्ट करूं? मर्चेंट ने बोला, हाँ जरूर। फार्मर ने स्टोरी शुरू की। उसने कहा, मेरे फादर एक किसान थे, उनके पास एक घोड़ा था और एक सेडल थी उस घोड़े की, जो उसके ऊपर पहनाई हुई थी। वो हर संडे अपने घोड़े के साथ पास वाले गांव में बाजार जाया करते थे। लोग देखते से ही बोलते थे कि कितना अच्छा घोड़ा है और उसकी सीट भी कितनी अच्छी है। एक दिन मेरे फादर ने उस लेदर की सीट को निकाला और घोड़े को बिना सीट के बाजार ले गए। जब वे घर लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि घोड़े को बहुत दर्द हो रहा था। मर्चेंट ने पूछा, क्या वो बहुत बड़ा था? फार्मर ने बोला, हाँ, तुम्हारी हथेली से भी बहुत बड़ा घाव था। क्या तुम्हें पता है कि वो दर्द कैसे होने लगा था घोड़े को? How can I? Asked the merchant, looking very clever. I only know that the sore was as big as the palm of my hand. It must have given the poor animal a lot of pain. No, it didn't. Though it was as big as the palm of your hand, my father didn't know that the saddle was torn and it had caused the sore.
It was the month of June and there was a storm. The poor horse got a lot of dust into the sour and with the dust some grains of wheat too. Then it rained and so the grains of wheat began to sprout. What a wonder, said the merchant. But he quickly added, it is quite possible. Grains of wheat sprout when they get a chance. Yes, they sprout and grew, and then what a fine crop we had. My father had to hire 20 men to reap it. I had done it myself a number of times. Sometimes I used to hire even 40 men. When there was a good crop, we had to hire quite a good number of men for reaping. मर्चेंट ने कहा, मुझे कैसे पता? मुझे तो बस इतना ही पता है कि वो मेरे हथेली से भी बड़ा था। ऐसे ही उस घाव ने उस बेचारे जानवर को कितना दर्द दिया होगा। नहीं, ये हथेली के बराबर इतना बड़ा नहीं हो सकता। मेरे फादर नहीं जानते थे कि वो जो सीट है वो फटी हुई है और उसके कारण उसको बहुत दर्द हुआ। यह मई जून का महीना था और वहाँ बहुत ज़्यादा आंधी तूफान था, जिससे बहुत सारी धूल और अनाज के दाने उसके घाव में भर गए और उगने लगे बारिश के पानी से। मर्चेंट ने बोला, बहुत अच्छा। फिर उसने तुरंत बोला कि क्या यह संभव है कि गेहूं के जो बीज होते हैं, अगर उन्हें थोड़ा भी पानी और मिट्टी मिल जाए तो वे तुरंत उग जाते हैं? हाँ, फिर वे उगने लगे और एक अच्छी फसल बन गए। मेरे फादर ने 20 लोगों को हायर किया उनको कटवाने के लिए, और कभी कभी मैं भी ये काम किया करता था। कभी कभी मैंने 40 लोगों को हायर किया इनको निकलवाने के लिए, और जब ज़्यादा अच्छी फसल होती थी तो हम ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी उस फसल को कटवाने के लिए। यस, वी हैड अ वेरी गुड क्रॉप एंड वी reaped 40,000 kilos of wheat of the horseback. How lucky your father was, very lucky indeed. But your father, you know, was poor and starving those days, so he came to my father and begged him to give him 75 kilos of wheat. The merchant was very angry. His father never starved, but he couldn't cast any doubt on the story, so he had to make an effort to hold his tongue. My father continued, the farmer was a kind and good neighbor, so when he saw your father starving, he gave him 75 kilos of wheat. Your father owes it to my father even to this day. Sometimes I want to go to law about it. The merchant began running his thumb up and down his finger. He was calculating. Why are you running your thumb up and down your fingers? Are you calculating something? हाँ, हमने फसल काटी और उससे 40,000 किलो की फसल निकली। उस घोड़े की पीठ से तुम्हारे फादर कितने लकी होंगे। हाँ, वास्तव में मेरे फादर बहुत लकी हैं। पर फार्मर ने कहा मर्चेंट को कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर उस समय बहुत गरीब और भूखे थे, तो इसलिए तुम्हारे फादर मेरे फादर के पास आए और उन्होंने 75 किलो गेहूं भीख में मांगे। मर्चेंट बहुत गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि मेरे फादर तो कभी इतने भूखे नहीं थे, लेकिन उसने इस स्टोरी पर कोई डाउट नहीं किया, क्योंकि अगर डाउट करता तो उसको फिर अपना भुगतान करना पड़ता। इसलिए फार्मर का साथ दिया और उसकी स्टोरी सुनी। फार्मर ने कहा कि मेरे फादर तो अच्छे दयालु और अच्छे पड़ोसी थे, तो मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को ऐसा देखकर 75 किलो गेहूं दे दिए, इसलिए तुम्हारे फादर मेरे फादर पर इन दिनों ऋणी हैं। इसलिए कभी कभी मैं चाहता था कि मैं कहाँ जाऊँ इस न्याय के लिए। फिर मर्चेंट अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे करने लगा। वह कुछ गिन रहा था। फार्मर ने बोला, तुम अपनी उंगली ऊपर नीचे क्यों कर रहे हो? क्या तुम कुछ गिन रहे हो? Yes, I am, the merchant replied. Then he said to himself, the wheat costs less than 100 rupees, so I shall pay him the price of the wheat. He turned to the farmer and giving him 75 rupees said, here is the money for the wheat. Thank you, said the farmer. You are very fair and honest, and I like the bargain, Ravi. And now, David, isn't the wheat cheaper? David, yes, I don't want to cast a doubt on your story. I agree that the wheat is cheaper.
मर्चेंट ने कहा, हाँ मैं कुछ गिन रहा हूँ। फिर उसने अपने मनी मन कुछ कहा कि गेहूं की जो कीमत है वो 100 रुपये से कम है, इसलिए जो गेहूं की कीमत है वो पे करूंगा। फिर मर्चेंट फार्मर के पास गया और उसको 75 रुपये दिए और कहा कि ये गेहूं के पैसे हैं। फार्मर ने कहा, धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे और ईमानदार हो और मुझे ये सौदा बहुत पसंद आया है। रवि ने कहा, अब बताओ गेहूं सस्ते हुए कि नहीं। डेविड ने कहा, हाँ मैं सहमत हूँ तुम्हारी स्टोरी से कि ये स्टोरी व्हीट इज चीपर है।